the square of a real number can sometimes be lesser than the original number. Generally, if you square a number, you are going to get a number which is greater than the number itself. If we square 2, we are going to get 4. If we square 3, we are going to get 9, which is greater than 3. And for most of the numbers. But if we take a number between 0 and 1, I'm not talking about 0 and -1 right now. If I take a number that is a proper fraction, and if I try to square it or cube it, what we get is the square of the number is less than the original number. Yes, half of half. Half of half, that is the square of half, is less than half. Half of half. Half of half, that is 1/4, is obviously less than 1/2 because 1/4 is 0.25 and this is 0.5. Half is less than half. In the same way, half of half, that is 1/8, is also less than the original number half. The cube of half is less than half. It happens in this area only. That is, if we take x is from between 0 and 1. For x is equal to 0, x is equal to x square and x is equal to x cube. For x is equal to 1, x is equal to x square and x is equal to x cube. But when we talk any number which is greater than 1, in general sense, the square will obviously be greater than the number. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर हमेशा नंबर से बड़ा आ रहा है. लेकिन यहां देखेंगे तो स्क्वायर जो है वो नंबर से हमेशा 0 से 1 के बीच में छोटा होता है. यहां x की वैल्यू सब जगह हाफ है, x इज हाफ हियर. y की वैल्यू x के बराबर है अगर y इज इक्वल टू x है. x स्क्वायर है तो y की वैल्यू हाफ से कम है, दैट इज 1/4. और x क्यूब के लिए y की वैल्यू उससे भी कम है, दैट इज 1/8. 1/2 का क्यूब 1/8. अगर ये सब डिस्कशन समझ में ना आए, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. एक्चुअली we are having 3 questions in our NCERT book on the very first page in the exercise 1.1 to discuss the symmetricity, the reflexivity, symmetricity and transitivity of 3 functions, that is y is equal to x, y is equal to x, y is less than equal to x, y is less than equal to x square and y is less than equal to x cube. To understand it, because most of the people say square तो हमेशा नंबर से बड़ा ही होता है, इसमें कौन सी बात हो गई. ये गलतफहमी मिटाने के लिए कि स्क्वायर हमेशा नंबर से बड़ा होता है, ऐसा नहीं है. अगर वो नंबर 1 से बड़ा है, इट्स ऑल राइट, स्क्वायर उससे बड़ा होगा. नंबर से स्क्वायर का ग्राफ ऊपर जा रहा है, y की वैल्यू ज्यादा है तो बड़ा है. अगर वो नंबर नेगेटिव है तो स्क्वायर हमेशा नंबर यानी रेड वाली से ऊपर आ रही y की वैल्यू, इसका मतलब बड़ा है. लेकिन 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर है, यानी अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, रियल नंबर है 0 से 1 के बीच में, तो ये गारंटी है कि उसका स्क्वायर उस नंबर से कम होगा. लेकिन इसके अलावा कहीं भी कोई भी नंबर हमेशा अपने स्क्वायर से छोटा होता है, और 1 से आगे होगा तो स्क्वायर जो है नंबर स्क्वायर से छोटा होता है और स्क्वायर उससे बड़ा होता है. यहां पर स्क्वायर तो हो जाता है छोटा और नंबर हो जाता है बड़ा. तो चाहे मैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लूं, चाहे y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लूं, it is not going to be symmetric. Let's talk about it today. See, exercise 1.1, question number 2, 4 and 5. तीनों में, एक में a is less than equal to b square, यह a is less than or equal to b, एक है a is less than equal to b cube. यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम अपने आप से, जो हमने ग्राफ डिस्कस किया, क्या हर एक नंबर का, द पॉइंट इज for every a is element of real number, a square, a is less than equal to a square? No. a is less than equal to a cube? No. क्योंकि 0 से 1 के बीच में जो नंबर होता है वो खुद के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है. जो खुद नंबर है वो अपने स्क्वायर से बड़ा होता है. स्क्वायर छोटा हो जाता है और नंबर बड़ा रह जाता है. ग्राफ नीचे चला जाता है, एक्स स्क्वायर का y इज इक्वल टू एक्स से हमने अभी बात की थी. तो यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड की बात करूं तो हम सीधा एग्जांपल दे सकते हैं. हियर half is element of real number but
half is not less than equal to half square. That is, half comma half is not element of R1, so R1 is not reflexive. अब समझ में आ रहा होगा हम वो डिस्कशन क्यों कर रहे थे. हमें पता है 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा वो अपने स्क्वायर से छोटा नहीं होगा. अदरवाइज हर नंबर यहां ए रख दूं तो a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर इफ ए इज ग्रेटर देन 1. बट 0 से 1 के बीच में वो अपने स्क्वायर से, जो नंबर होता है वो अपने स्क्वायर से क्या रह जाता है, बड़ा, और नंबर का स्क्वायर उससे हो जाता है छोटा. ये कहानी क्यूब के साथ है. क्या होगा, 0 से 1 के बीच में कोई भी चूज करो. आप कहोगे सर हाफ ही क्यों लिया. कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन लीजिए, 5/7, 7/9, लेकिन 1/2 जनरली हम ज्यादातर लोग लिखते हैं. तो ये क्या हुआ, हियर 1/2 is element of real number, but 1/2 is not less than equal to 1/2 cube. 1/2 1/8 से छोटा नहीं होता. So 1/2 comma 1/2, 1/2 का 1/2 से रिलेशन नहीं है, is not element of R3, so R3 is not reflexive. अब इसकी बात करें, do every number is less than itself? No, not at all. A number cannot be less than itself. But here you see a is less than b और a is equal to b. इन दोनों और लगाए तो इन दोनों में से एक भी शर्त अगर पूरी हो जाए तो स्टेटमेंट ट्रू है. Do every number is less than equal to b? No. But do every number is equal to itself? अगर मैं b को a के से रिप्लेस करूं, a is less than or equal to a. Yes, it is true. Either a is less than a, which is not true, but or a is equal to b, a. तो यहां हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है तो हम क्या लिखेंगे, लेट, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, जब भी रिफ्लेक्सिव लिखेंगे, लेट a is any arbitrary element of the given set, then a is related to a for every a is element of R. खुद का खुद से रिलेशन है इसलिए रिफ्लेक्सिव है. जो नहीं है वहां कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जो प्रूव करना है, प्रूफ हमेशा जनरल मेथड से करना है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके. लेट a is any arbitrary, let a is any arbitrary real number, then we have a is less than equal to a, which is true. a comma a का R2 में होने का मतलब a is less than equal to a, which is true. So here every element of domain is related to itself, so R is reflexive. So R is reflexive. In the first case, R wasn't reflexive. Here, R is reflexive. The relation here, R is not reflexive. Here, R is not reflexive. But here, R is reflexive. So where it is not reflexive, we give the counter example, and we were aware about it. You know, the square and cube of a number between 0 and 1 is always less than the original number. That is, the original number is not less than its square between 0 to 1. That's why we have chosen an example 1/2. ज्यादातर लोग बोलते हैं सर आपने तो चूज कर लिया 1/2, हमें क्या पता लगेगा. इसीलिए पूरा ग्राफ बना के आपको दिखाया गया. सीधी सी बात है, y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला ऐसे बनता है, तो ये नीचे रह जाता है 0 से 1 के बीच में, यानी एक्स स्क्वायर छोटा होगा और क्यूब इससे भी छोटा रहता है, लेकिन आगे ये बढ़ जाते हैं जल्दी. अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक, ये तीनों के तीनों रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर a b से छोटा है तो जनरली b a से छोटा नहीं होगा. a की शर्त में जब इक्वल हो तब यहां बात बनेगी. यहां भी 0 और 1 पे और -1 तीन जगह ये ऐसा हो सकता है कि a का b से भी और वापस b का a से. यहां सिर्फ 0 and 1 दो नंबर ऐसे हैं.
जहां ए का बी से वापस बी का ए से हो गया। तो जनरली ऐसा होगा कि अगर ए का बी से है तो वापस बी का ए से नहीं होगा। जनरल नंबर लेने 1 2 नेचुरल नंबर्स फर्स्ट। हियर वी हैव 1 इज less than equal to 2 square, but 2 is not less than equal to 1 square. So 1 comma 2 is element of R1, but 2 comma 1 is not element of R1. So R1 is not symmetric. देखो 1 तो 4 से छोटा है, लेकिन 2 जो है वो 1 से छोटा नहीं है। इसका मतलब 1 का रिलेशन 2 से है, बट 2 का रिलेशन 1 से नहीं है। ये की कहानी तीनों में चलाते हैं भैया। 1 तो 2 से छोटा है, पर 2 1 से छोटा नहीं है। तो हियर वी हैव 1 comma 2 is element of real number. यहां भी here we have 1 comma 2 real number in domain where 1 is less than equal to 2, but 2 is not less than equal to 1. 1 तो 2 से छोटा है, 1 का रिलेशन 2 से हो गया, बट रिवर्स पेयर अवेलेबल नहीं है। कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। दैट इज 1 comma 2 is element of R2, but 2 comma 1 is not element of R2. रिवर्स पेयर इसका अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं है। इसमें भी वही, here we have 1 comma 2, sorry, 1 and 2 element of real. 1 is less than 2 cube. 1 is less than 2 cube. 1 8 से छोटा है, but 2 is not less than equal to 1 cube. इसका मतलब 1 comma 2 is element of R3, but 2 comma 3 is not element of R3. So ये भी सिमेट्रिक नहीं है। So R2 is not symmetric. So R3 is not symmetric. जब भी ना हो सिमेट्रिक, एक काउंटर एग्जांपल काफी है। तो तीनों ही सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या था, इक्वल होने के कारण ये रिफ्लेक्सिव है, ये दोनों रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जांपल हमने बहुत सीधा लिया, हाफ जो है हाफ के स्क्वायर से छोटा नहीं होता, और हाफ हाफ के क्यूब से भी छोटा नहीं है। 0 से 1 के बीच में कोई भी लें, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ये ट्रांजिटिव है, बट ये दोनों नहीं। देखते हैं कैसे। ये बहुत सीधा है लॉजिकली। ए बी से छोटा है और आगे जाके बी सी से छोटा है। हेलो, ए इज लेस देन बी, A is less than B and B is less than C. Then obviously A से बड़ा हो गया B और B से बड़ा हो गया C, तो A से C तो बड़ा ही है। तो इसमें जनरल प्रूफ देंगे। यहां इन दोनों में देंगे कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे देखते हैं। यहां पे लेट, क्योंकि जनरल प्रूफ देना ये है, इसलिए लेट A कॉमा B कॉमा C आर रियल नंबर सच दैट A कॉमा B इज एलिमेंट ऑफ R2 एंड B कॉमा C इज एलिमेंट ऑफ R2। अगर ये है, देन देखते हैं क्या आता है। A कॉमा B इज एलिमेंट ऑफ R2 एंड B कॉमा C इज एलिमेंट ऑफ R2। देखते हैं अगर A का रिलेशन B से है और आगे जाके इस B का रिलेशन C से है, तो सीधा A का C से है या नहीं। ऑब्वियसली इसका मतलब है, by definition of this relation, A is less than equal to B. First is less than or equal to the second. First is less than equal to the second. एंड इसका मतलब है B का C से, तो B मस्ट बी लेस देन इक्वल टू C. B मस्ट बी लेस देन इक्वल टू C. इन दोनों को मर्ज करते हैं, दिस एंड दिस, तो ये कहलाएगा A इज लेस देन इक्वल टू B इज लेस देन इक्वल टू C, मीन्स A जो है वो C से छोटा है, मतलब A कॉमा C भी R2 में है। A अगर C से छोटा हो गया, इसका मतलब A का रिलेशन C से हो गया। सो सिंस AB is element of R2 and BC is element of R2 implies that AC is element of R2
ए का बी से होने पे और बी का सी से होने पे गारंटी कि ए का सी से है, सो R2 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। R2 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इन दोनों की बात करते हैं। ए बी के स्क्वायर से छोटा है और बी आगे जाके सी के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ए सीधा सीधा सी से छोटा, सी के स्क्वायर से छोटा हो ही। देखो कैसे, हम सीधा बी पे अगर फोकस करें, कोई नंबर चूज करते हैं 3, हम इस पे फोकस करते हैं, वी चूज 3। 3 का क्यूब कितना होगा? वी हैव 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 3 का क्यूब है 27। 27 से जस्ट कोई छोटा नंबर ले लो, 26। सो 26 इज रिलेटेड टू 3। देखो सीधी सी बात है, 26 इज लेस देन 3 क्यूब, पहला नंबर, दूसरा स्क्वायर, तो स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 9 से जस्ट छोटा नंबर ले लो, 8। 8 इज रिलेटेड टू 3। एंड अब ये 3 देखते हैं, 3 किसके स्क्वायर से जस्ट छोटा? 2 2 जा 4, बट ये R1, बट 8 जो है सीधा 8, 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R1, एज 8 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। देखो क्या करना है, सेकंड पे फोकस करें, यहां मान लिया 3 ले लें। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। 9 से कोई भी छोटा नंबर होगा वो हमेशा रिलेटेड होगा, तो हमने ले लिया 8। 8 का रिलेशन 3 से। अब 3 किससे रिलेटेड हो सकता है? उस नंबर से जिसका स्क्वायर इस 3 से बड़ा हो। इस बात को समझें, यहां फिर से आएगा क्यूब में। हम क्या किया? हमने चूज किया, हियर वी हैव, बी पे फोकस करते, बी क्यूब। 3 का क्यूब लिया कितना? 27। सेकंड नंबर हमने चूज किया, ऐसा नंबर लिखेंगे ए जो 27 से कम हो। लेट्स टेक 26। 26 का रिलेशन 3 से है। क्यों है? क्योंकि 26 जो है वो 3 के क्यूब से छोटा है। एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ R3। एंड आगे बढ़ते हैं, अब 3 का रिलेशन किससे है देख लेते हैं। 3 का रिलेशन उससे होगा जो 3 किसके क्यूब से छोटा है? 1 के क्यूब से छोटा नहीं है, 2 के क्यूब से छोटा है, 8 से। तो 3 का रिलेशन किससे हो गया? 2 से। बट 26 see the 26 2 is not element of R3, so R3 is not transitive. In the same way here, so R1 is not transitive. इसका तरीका देखिए, हमने क्या किया, कोई भी पेयर चूज कर सकते हो। पहले हमने बी पे फोकस किया, कोई भी नंबर लिया, उसका स्क्वायर सोच लिया। जैसे मान लिया एक नया पेयर अगर जनरेट करें, हमने लिया बी की जगह 10। 10 का स्क्वायर कितना है? 100। 10 का स्क्वायर कितना है? 100। तो यहां लिखा 10। 100 से कोई भी छोटा नंबर इससे रिलेटेड होगा। लेट्स टेक इट 99। अब क्या हुआ? 99 का रिलेशन 10 से है। आगे देखते हैं 10 का रिलेशन किससे? 10 हर एक उस नंबर से रिलेटेड होगा जिसका स्क्वायर 10 से बड़ा हो। तो 1 का स्क्वायर 10 से बड़ा नहीं है, 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का स्क्वायर बड़ा। 10 का रिलेशन किससे है? 4 से। बट ये दोनों तो R1 में है, बट 99, 4, 99 का रिलेशन सीधा 4 से नहीं है, क्योंकि 99 4 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, क्योंकि 99 16 से छोटा नहीं है। सो आप चूज कैसे कर सकते हैं? यहां भी वही, आप कोई ऐसा नंबर चूज करो जिसका क्यूब ले लो पहले, और क्यूब से जस्ट छोटा, जस्ट जैसे उसका पिछला नंबर ले लो। तो मान लिया मैंने 4 ले लिया इस बार, तो 4 अगर मैं लेता हूं तो 4 का क्यूब कितना है? 64। तो ये लिखा 4। 64 से कोई भी छोटा नंबर लिख देता हूं। 64 से छोटा नंबर क्या हुआ? मैंने ले लिया 63, जस्ट छोटा। अब 63 का रिलेशन 4 से है। क्यों? क्योंकि 63 इज लेस देन 4 क्यूब। अब बात करते हैं 4 का रिलेशन। ये कहां से? 4 का रिलेशन उस हर एक नंबर से होगा जिसका क्यूब 4 से ज्यादा हो। तो 1 का क्यूब तो नहीं है, लेकिन 2 का क्यूब 4 से ज्यादा है।
ये दोनों R3 में है, बट सीधा 63 का 2 से नहीं है. 63 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2q. सो 63 इज नॉट रिलेटेड टू 2. इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है. दिस इज हाउ वी कैन जनरेट एग्जाम्पल. आप कितने हजारों एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं. कोई एक नंबर चूज करें, उसका क्यूब लें, उससे जस्ट छोटा एक नंबर ले लें. अब ये जहां पर एंड हुआ है वो किससे रिलेट हो सकता है ये सोचने के लिए एक ऐसा नंबर बाद में लो जिसका कि, अगर क्यूब वाला क्वेश्चन करो, जिसका कि क्यूब इससे ज्यादा हो, जस्ट ज्यादा बस, और फिर इसका इससे नहीं होगा. दैट्स ऑल. दैट्स हाउ वी सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. रिफ्लेक्सिव की बात करें, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इक्वल की शर्त को हमेशा पूरा करेगा. नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू. लेकिन इसमें क्या होगा, इक्वल तो होगा लेकिन हमेशा ही नहीं होगा. इसलिए क्या होगा, 0 से 1 के बीच का कोई भी एग्जांपल लेंगे, कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में खुद का खुद से रिलेशन नहीं है. इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, और ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब बात करें सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक में तीनों ही सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 का रिलेशन 2 से है तीनों ही जगह, लेकिन 2 का रिलेशन 1 से नहीं है. ट्रांजिटिविटी की बात करें, लेस देन इक्वल टू वाला ट्रांजिटिव है क्योंकि ए से बड़ा है बी से बड़ा है सी, तो ऑब्वियसली ए से बड़ा होगा सी. तो यहां जनरल प्रूफ दिया हमने. ये दोनों ट्रांजिटिव नहीं है. हाउ टू क्रिएट पेयर्स, दैट वी हैव डिस्कस्ड. आई होप हमें समझ में आया होगा. एक बार और इसे देखिए. वेल, अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं. वेल, यहां पर क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन थर्ड. Check whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as, this is the definition here. So here R, if I talk about its solution, here R is defined as all those ordered pair in which B is equal to A plus 1 and both A, B are element of this set. So what we'll do, we'll put input A and we'll be getting the values of B, C. B must be there in this set. देखते हैं. Both A and B must be there. For A is equal to 1, the given relation can be written in roster form as, कैसे लिख सकते हैं, R is equal to, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. If I take A is equal to 1, do I get B which is included in this set? A की जगह 1 लिया, यहां पर देखते हैं, तो A की जगह 1 लिया तो B कितना आया, 1 plus 1 2. ओके. फिर सोचते हैं 2 लेने पे 2 plus 1 3, तो 2 लिखना है. A की जगह 3 लिया, then B is 4. A की जगह 4 लिया, B is 5. A की जगह 5 लिया, then B is 6. Acceptable. But if I take A is equal to 6, then the value of B is 7. That is not acceptable क्योंकि ये रिलेशन किस में, इस सेट में डिफाइन किया गया, यानी B भी इसमें होना चाहिए. एक और क्वेश्चन है हमारी बुक में, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका. देयर y is equal to x plus 5. y is equal to x plus 5 and x is less than 4. ध्यान दीजिए x and y both are natural number. इसमें अलग है, इसमें तो 6 तक था, इसमें x और y कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ x पे रिस्ट्रिक्शन है 4 से लेस होने का. माइंड इट, इन दिस क्वेश्चन R is defined in this set, that means both A and B must belong to this. Here the relation is defined on the natural numbers. सारे के सारे नेचुरल नंबर, ये पूरा हमारा रिप्लेसमेंट सेट है. इस रिप्लेसमेंट सेट में से सिर्फ x की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, 1, 2 एंड 3. 1, 2 एंड 3, क्योंकि x को हमें 4 से छोटा लेना है, तो हम 3 ही वैल्यू x की एक्सेप्टेबल है. नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो 3 ही एक्सेप्टेबल है. ये इसका होगा डोमेन. तो ये पूरा रिप्लेसमेंट सेट या नेचुरल नंबर है, जबकि यहाँ रिप्लेसमेंट सेट भी ये था और वापस कोडोमेन भी ये था. तो यहां ये बात ध्यान रखने की. तो ये रिलेशन को जब हम लिखेंगे क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट का, तो इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो x की 3 ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, 1, 2 एंड 3. पुट कर देते हैं इसमें. x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 1 plus 5 6. देखिए y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. यहां पर हमने क्यों नहीं 6 पुट किया x की जगह, क्योंकि x की जगह 6 यानी a की जगह 6 पुट करने पे दिस विल गिव यू
6 प्लस 1 दैट इज नॉट एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। यहां पे रिप्लेसमेंट सेट पूरा नेचुरल नंबर था, रिस्ट्रिक्शन वाज ओनली ऑन एक्स, वाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता था। देखते हैं, तो 1 का 6 से है, 2 का हो गया 2 प्लस 5 7 से, अगर x की जगह 3 पुट करते हैं तो वी गेट 8। अब बात करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या सारे के सारे एलिमेंट, डोमेन में 3 ही एलिमेंट है 1 2 3, ध्यान दीजिएगा रिप्लेसमेंट सेट में पूरे नेचुरल है लेकिन डोमेन में 3 ही एलिमेंट है। क्या ये तीनों एलिमेंट खुद से रिलेटेड है? 1 का रिलेशन 1 से भी नहीं दिख रहा, 2 का भी नहीं दिख रहा, 3 का भी नहीं दिख रहा, तो हम सीधा बोलेंगे रिफ्लेक्सिविटी में क्या लिखेंगे, 1 इज एलिमेंट ऑफ डोमेन, 1 इज एलिमेंट ऑफ n, बट 1, 1 is not element of R, so not reflexive। अब आगे बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या होता है, जो भी पेयर, इफ देयर इज अवेलेबल एनी पेयर, जो भी पेयर होगा उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर जरूर होना चाहिए। तो सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में यहां 1 6 है, 6 1 नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हियर 1, 6 इज एलिमेंट ऑफ R, बट 6, 1 is not element of R, so not symmetric। अब बचता हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, 1 का 6 से, क्या कोई पेयर 6 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। 2 का 7 से, क्या कोई 7 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 का 8 से, क्या कोई 8 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। Here since for every A, B, C is element of n, if A, B is element of R and B, C is element of R, then हम साफ साफ देख सकते हैं अगर ऐसा होता तो A का C से होता। Since transitivity is, that is since transitivity is not contradicted, so R is transitive। क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल यहां नहीं है कि जहां पर ट्रांजिटिविटी फॉलो ना हो रही हो। इसका मतलब जहां जहां भी हाइपोथेसिस जब ट्रू थी तो जरूर जरूर हमारा कंक्लूजन भी ट्रू आ रहा था, यानी सीधी सी बात है ट्रांजिटिविटी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुई तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन ट्रांजिटिव है। अब बात करते हैं इसकी, चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में 1 का भी 1 से होना चाहिए था, 2 का भी नहीं है, तो कोई एक नहीं होने पे कोई एक एग्जांपल काफी है। तो हम लेते हैं हियर 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, मान लिया सेट का नाम ये दे देते हैं, बट 1, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इस रिलेशन में नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या बात करनी है, for each ordered pair present in the R, its reverse ordered pair must be available। तो बात करते हैं 1 2, नहीं मिला 2 1, बात ही खत्म हो गई। बहुत सारे हैं, हमें तो एक चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, here 1, 2, this ordered pair is available in R, but 2, 1 is not available in R, so R is not symmetric। चलो, क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक करते हैं, और इसी को अच्छे से एक क्वेश्चन समझ लेंगे, बात खत्म। ट्रांजिटिव कैसे, 1 का 2 से, क्या 2 का किसी से है? यस। 2 का 3 से, तो सीधा सीधा 1 का किससे होना चाहिए? 3 से, जो कि 1 3 यहां पे नजर नहीं आ रहा। तो हियर वी कैन सी 1, 2 is element of R, and आगे जाके इस 2 का रिलेशन 2, 3 is element of R, but 1, 3 is not element of R। 1 का सीधा 3 से नहीं है, so R is not transitive। तो यहां बात करें, यहां सिर्फ रिस्ट्रिक्शन x पर थी, x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, x y दोनों नेचुरल, तो हमने 4 से छोटी, 4 के इक्वल भी अलाउड नहीं थी, ओनली 3 इनपुट्स पर दिया।
अब इन तीनों पे रिलेशन निकाला तो 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 का 6 है, बट उल्टा नहीं है। ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि ट्रांजिटिविटी कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुई। यहां पे ट्रांजिटिविटी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, दैट्स वाई चेक करने का सिस्टम। अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, वहां ट्रांजिटिविटी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब आता है नेक्स्ट दिस 3x माइनस वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x माइनस वाई जो कि हमको दे रखा है सेट 1 2 3 4 अप टू 14, हम सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिख के देखेंगे क्या 1 से लेकर 14 तक का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, अगर है तो रिफ्लेक्सिव। फिर देखेंगे क्या हर एक पेयर के लिए रिवर्स पेयर है, तो सिमेट्रिक। फिर देखेंगे अगर ए का बी से आगे जाके बी का सी से है तो क्या ए का सी से है, अगर ऐसा हर जगह हो रहा है मतलब सिमेट्रिक, और नहीं हो रहा मतलब ट्रांजिटिव, और अगर नहीं हो रहा तो ट्रांजिटिव नहीं। तो सबसे पहले हियर दिस आर कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज, देखो यहां सीधा अगर ध्यान दो तो y इज इक्वल टू कितना है 3x, तो आप x चूज करते जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि y और x दोनों ए से लेने हैं, y की वैल्यू 14 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो x की वैल्यू डालते हैं 1 फॉर x, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, y इज 3 बन जा। इफ आई टेक x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ओके इट्स हियर। सो नाउ x इज इक्वल टू 3 will give me 3 3 जा 9 which is available here, okay, 4 will give me 4 3 जा 12, but 5 will give me 15, so 5 is not related to any element of A, and any element greater than 5 will not obviously be related to any element of A। अब बात करते हैं वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं, किसी का भी खुद से नहीं है, तो सीधा क्या लिख देंगे हियर 1 इज एलिमेंट ऑफ ए बट 1, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक की, 1 का 3 से रिलेशन है बट 3 का रिलेशन 1 से नहीं है, तो हम लिखेंगे हियर 1, 3 इज एलिमेंट ऑफ आर but 3, 1 is not element of R, so R is not symmetric। Last but not the least चेक करते हैं 1 का 3 से, क्या 3 का किसी से, हाँ 3 का 9 से है, तो देखना है सीधा 1 का 9 से है नहीं, 1, 9 नहीं है यहां पर, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो हम लिखेंगे हियर 1, 3 is element of R and 3, 9 is element of R, but 1, 9 सीधा 1, 9 is not element of R, so R is not transitive, right? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या करें हम यहां 5x कर दें, सपोज यहां क्या कर दें 5x, तो अब देखते हैं 5x करने पे पेयर क्या बनेंगे, 1 जब x की जगह रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखने पे क्या आएगा, नया क्वेश्चन बन गया अब ये 5x के लिए, 2 रखने पे क्या आएगा 10, 3 रखने पे 15 आएगा ही नहीं क्योंकि 15 यहां पर नहीं है। अब देखो इतना सा करने पे क्या चेंज आया, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 1 का 1 से नहीं, 2 का 2, सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 5 बट 5 इज नॉट रिलेटेड टू 1, बट दिस टाइम यू कैन सी इट इज ट्रांजिटिव। 1 का 5 से, 5 का आगे जाके किसी से नहीं, 2 का 10 से, 10 का आगे जाके किसी से नहीं है, अब ये ट्रांजिटिव हो गया है। क्यों हो गया है, बिकॉज ट्रांजिटिविटी ये शर्त पूरी हो रही, इफ अगर ए का बी से और बी का सी से है तो जरूर ए का सी से है, दैट इज ट्रांजिटिविटी इज नॉट बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते ही क्वेश्चन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, आई होप आपसे बहुत आराम से हो जाए।